Okay, Assalamualaikum everyone. How is everybody? It's been so long that I've been live. I think काफी दिन हो गए हैं ईद से पहले I think I did a live session and then I couldn't get time and I really missed it and finally I'm back here. Uh, a few things that I really wanted to first thank you to the members who are inboxing me just to know that if I'm doing okay. I'm absolutely fine. It's just that there were so many things going on and I was caught up, so I couldn't do live sessions as much as I could do it earlier, because as the lockdown is becoming a little ease down, तो चीजें भी काम भी बढ़ गए हैं, तो इस तरीके से I was caught up. There were so many live sessions going on कि unless and until I find something that I know I would know कि okay, this is something new for the members, then I was planning for that. Otherwise इतनी repetition I think जरूरत नहीं है, because there's so many other platforms also they are giving such good information. But after a very long time I found a very interesting topic, neuroplasticity, and was looking for someone who could actually give an in-depth knowledge about it. And I think I couldn't have find a better guest than what I have today. So I just wanted to start that, and thank you so much for all the love in the inbox. I'm really thankful. I'm saying that again. I'm absolutely fine. Everything is fine. My son is fine. It's just that too much was going on. So today's topic will be regarding neuroplasticity. This is something new for me also. As a psychologist, I know a little bit about it, but in depth and how neuroplasticity can be connected and referred to with children with special needs and children who are on spectrum. कैसे इनकी connection क्या है? How can we help and benefit from knowing about this concept? We're going to talk about it, and we have Hina Rehan here, and I'll just add her to the stream, and she will introduce herself. Hello, Assalamualaikum, Hina. Walaikum assalam. How are you? I'm fine. Thank you so much for doing this for Team Neurodiversity. It is such a. I always wanted to join and do a collaboration with Hope Revival, and I think this is such a good combination in which we could do. So, Hina, can you first introduce yourself? Okay, this is Narihan. As you all know, I am a founder of Hope Revival. As you have already given my introduction, but I'll again repeat it that I have done my MS in clinical psychology. I'm a psychologist. I'm also a ABA therapist, and done my RABT diploma. And sorry for the noise coming from the background. I'm extremely sorry for that. That's And okay. then I've done my REBT diploma. I have certification courses in neuroplasticity. I don't know, for some reason it always intrigues me, like what is neuroplasticity? How does it work? How it is like connected with psychology? How it is connecting with other problematic issues? So this is all about me. Okay. Thank you so much again for doing this, Hina. So, Hina, pehle to I would, can you also tell a little bit about what is the theme behind Hope Revival? Why did you think you wanted to create this platform so that my members, and I think mothers would really benefit from your Facebook group? So, can you explain a little bit about it? Yeah, sure. Like why I initiated this platform, why I started working on this. As you know, I was just so much devastated because of the news of that blogger, जिसने I guess suicide commit की थी. And उसके बाद I thought that there are so many people out there who need help, especially women in our society, जिनके पास बहुत ज़्यादा readily help available नहीं होती. And एक और Yeah. चीज़ जो मैंने बहुत observe की है that they have always issues like paying like charges. उनको लगता है कि चार्ज लोग जो करते हैं वो ज़्यादा थोड़ा हाई होता है, हम लोग नहीं जा पाते, हम इतना पे नहीं कर पाते. तो बहुत इस तरह के इश्यूज की वजह से बहुत से लोग फ्रंट पे नहीं आ पाते, एंड दे डू नॉट सीक इन काइंड ऑफ हेल्प लाइक साइकोलॉजिकल हेल्प. कोई भी तरह से इस पे लाइक डाइव इन नहीं करता. देन आई थॉट कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जाए जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीजें इस तरह की हेल्प की जाए. अगर सेशंस नहीं भी प्रोवाइड की जाए तो एटलीस्ट साइकोलॉजिकल गाइडेंस, साइकोलॉजिकल टिप्स, ये चीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं. तो फिर मैंने थोड़ा डिफरेंट अपना पैनल रेडी किया जिसमें जो हमारे पास एक्सपर्ट हैं और जो कि डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर एक्सपर्टीज उनको हासिल है, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग विद मी. और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड. और इससे काफी ज्यादा औरतें, खवातीन, लड़कियां, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, हर तरह के लोग मेरे इसमें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में. एंड बहुत ज्यादा लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है. बहुत से लोग इसमें कमेंट वगैरह भी और हमें वो रिसीव भी होता है, अच्छा फीडबैक भी रिसीव हो रहा है कि लाइक
yeah, we are working on it. So this is And all about I hope. really want to mention one thing here कि है ना, what I like about Hope Revival is कि मैंने और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे हैं ऐसे, मगर जो कंटेंट आप लोग दे रहे हो दैट इज जेन्युइन. बाकी लोग जो Thank है ना you. वो समझते हैं हमें साइकोलॉजी क्या चीज है वो तो हमें भी पता है, तो गूगल की लिंक्स डाल Exactly. देते हैं. बट आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि आप लोग बहुत ऑथेंटिक चीजें देते हो और वो मुझे बहुत कम दिखती हैं फेसबुक ग्रुप्स में. तो आई रियली थिंक कि होप रिवाइवल इस मामले में मुझे बहुत अपील करता है. Thank you so much. Thank you so much. Since you are so mashallah doing a great job, आप एक डिफरेंट थीम के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कोलैबोरेशन इस तरह का हो रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली. आई एम जस्ट लविंग दिस, क्योंकि दो चीजें हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल इस तरह के प्लेटफॉर्म तो और भी बने हुए हैं, लेकिन द वे यू गाइस आर डूइंग इट्स जस्ट टोटली वेरी डिफरेंट यूनिक वर्क दैट यू आर कमिंग अप विद. हैट्स ऑफ टू थैंक यू यू सो गाइस. मच Anna. Thank you, Anna. Anna, now I would like के let's begin with what neuroplasticity is. ये है क्या, ये word के पीछे की कहानी क्या है? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की एग्जैक्टली क्या चीज है. सबसे पहले तो मैं ये अपने व्यूअर्स को ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी में जो न्यूरो वर्ड है वो कहाँ से आ रहा है. न्यूरो इज अबाउट योर ब्रेन, अबाउट योर ब्रेन. हमारे दिमाग में जैसे बिलियंस ऑफ ब्रेन सेल्स होते हैं, जो कि जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो एक डिफरेंट किस्म का केमिकल रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. अब वो किस तरह से रिलीज होता है, उसकी क्या वर्किंग है, उसके क्या मैं अगर स्ट्रक्चर की तो बात नहीं करूंगी, क्योंकि दैट विल बिकम लाइक टू मच टर्मिनोलॉजी इसमें बहुत ज्यादा यूज हुई है, तो मैं इसको जितना इजी करके बता पाऊंगी आई डू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो सेल्स है हमारे ब्रेन सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स जब एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं या हम कोई भी लर्निंग एक्सपीरियंस करते हैं, कोई भी हम नया काम सीखते हैं, तो जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एक कनेक्शन बिल्डअप होता है. कनेक्शन मीन्स बिटवीन सिनेप्स, इसे कहते हैं स्पेनाटोजेनेसिस. जेनेसिस मतलब किसी भी चीज का फॉर्मेशन, न्यू चीज की फॉर्मेशन. अगर हम न्यूरोजेनेसिस की बात करते हैं, इट मीन्स के न्यूरॉन और न्यूरल पाथवे एक बिल्डअप फॉर्मेशन के साथ हमारे दिमाग में बन रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोजेनेसिस. अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी वो एबिलिटी है जो कि हमारे ब्रेन को रीवायर करता है, रीऑर्गेनाइज करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्लाइंड बच्चा है और वो ब्लाइंड इंसान या बच्चा ले लें या बड़ा ले लें, वो ब्रेल पढ़ना स्टार्ट करता है, राइट? इफ ही इज स्टार्टेड यूजिंग ब्रेल टू स्टडी टू रीड, लेकिन उसका जो विजुअल कॉर्टेक्स है वो हमारे ब्रेन में मौजूद है, वो एक्टिवेटेड नहीं है क्योंकि वो देख नहीं सकता. तो उसका टच कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स है, वो एक्टिवेटेड हो जाता है. अब इस पूरे इस सिनेरियो में क्या समझिएगा कि जब हमारा विजुअल कॉर्टेक्स इट्स नॉट वर्किंग, तो उसने क्या किया, उसने एक नई जगह बनाई सेंसरी कॉर्टेक्स. अक्सर हमने ये सेंटेंस सुना होगा कि जो बच्चे जिनको जिनको हेयरिंग लॉस है, जिन जो ब्लाइंड है या फिर जो बोल नहीं सकते, उनकी डिफरेंट सेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा एनहांस हुई हुई Strong होती होती है. है. Yeah, ये yeah. होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से, क्योंकि हमारे ब्रेन में अगर Okay. एक जगह स्टॉप हो गई है तो हमारा ही ब्रेन स्टार्ट वर्किंग टू मेक अ न्यू पाथवे, एक नया रास्ता बनाता है और इट गोज टू अ न्यू प्लेस. अब जो न्यू रास्ता, जो न्यू पाथवे बना है, वो कहलाती है न्यूरोप्लास्टिसिटी. उसमें हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो दूसरी तरफ जाते हैं अपना रास्ता बनाते हुए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको ऐसे ले लें, हमारा एक थोड़ा हाईवे सा है ना, अगर आप न्यूरॉन्स को भी थोड़ा बता सको, आई थिंक जो लोगों को नहीं पता होगा उनके लिए न्यूरॉन भी एक नया वर्ड है, बारे में अगर न्यूरॉन आप इज थोड़ा. अ बेसिक सेल इन आवर ब्रेन. Yeah. इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि जैसे आपको लगेगा जैसे ट्री है, राइट? ऊपर से जैसे कुछ एक्सन से बने हुए, नीचे इसकी डेंड्राइट्स हैं, ब्रांचेस हैं. तो जब दो सेल जो है वो आपस में इस तरह कनेक्ट होते हैं, तो एक करंट से समझ लें, इसको मैं एक मजीद इजी कर देती हूँ. करंट से समझो, एक करंट बिल्डअप होता है, उसमें से फिर एक केमिकल जो है वो पास आउट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, जो जाके आपके मसल्स के साथ आपके डिफरेंट जो भी रिसेप्टर्स हैं वो वर्कआउट करते हैं. उसके बाद आपकी बॉडी में जितने लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप सीख रहे हो, कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, बात कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, वो उस दौरान जो है वो मुसलसल एक वर्किंग्स में चलता है. इसी चीज को हम साइनेप्टोजेनेसिस कहते हैं. जब साइनाप्स बिल्डअप होता है, जब कनेक्शन बिल्डअप होता है दो सेल्स के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में, तो फिर हमारी लर्निंग डेवलप होती है. लर्निंग डेवलप होती है, हमारा ब्रेन ग्रो करता है. इसीलिए हम कहते हैं कि ट्राई टू मेक योर एनवायरनमेंट एनरिच्ड. अगर आप एक कंफर्ट जोन में चल रहे हो, आपके पास कोई न्यू लर्निंग नहीं आ रही, इट मींस योर ब्रेन इज नॉट ग्रोइंग, आप वहीं के वहीं स्टक हो. इसीलिए न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस
डिफरेंट कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना मीन्स नई चीज हो रही है, नए कनेक्शंस बिल्डअप हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपका ब्रेन ग्रो कर रहा है। दिस इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू नो कि क्या चीज है न्यूरोप्लास्टिसिटी। या मेरा अपना आई थिंक ये जो आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली है ना कि ब्रेन ग्रो करने का मतलब है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे ब्रेन्स के नए पार्ट्स बनते हैं, ताकि वो बिल्कुल जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वो जो ब्रेन का ग्रो होने का मतलब है वो ये कि नए पार्ट्स बनते हैं, है ना? आई एग्जैक्टली। थिंक दिस व्हाट या अब जो ब्रेन के जो न्यू पाथ्स बन रहे हैं, इसको आप एक चीज और मैं एग्जांपल दूंगी यहाँ पे मजीद इजी करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल आप एक रोड यूज करते हो, जो हम लाइक नॉर्मली जैसे एक बड़ा खुला मैदान है एंड वी आर यूजिंग द रोड, रोड छोड़ या के जो हाईवे बना हुआ है उसको छोड़ के अगर हम उस फील्ड को, उस टेरेन को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, लाइक उसमें से गाड़ी गुजरती रहे और उस रोड को जो बना हुआ है उसको हमने छोड़ दिया, आफ्टर फ्यू ईयर्स या फ्यू मंथ्स आपको लगेगा उसमें जो है ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और वो जो है कवर अप होने लग जाता है डस्ट से, डिफरेंट ग्रीनरी से, और वो जो है वो रोड कवर हो जाता है, वो रोड गायब हो जाता है। नया रोड जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियां चला रहे हैं उस टैरेन के ऊपर, उस जहाँ पे मट्टी हो या कुछ ऐसी चीज है, तो वहां पे खुद ब खुद एक पाथ बनने लग जाता है। ये एग्जैक्ट वैसी एग्जाम्पल है जैसे हम अपने ब्रेन की एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर हम एक हमने एक काम करना छोड़ दिया, हमने एक हैबिट छोड़ दी, तो क्या होगा, हम वो हैबिट बहुत जल्दी कवर अप कर लेगी कि न्यू एक्टिविटी, न्यू हैबिट के साथ। ये जो पूरा ओके प्रोसेस हो रहा है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओके क्वेश्चन मैं इधर और ऐड करूंगी, अक्सर जैसे लोग कहते हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक, अगर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर काम करें तो अराउंड कोई लाइक 2 मंथ्स लगते हैं किसी भी नई हैबिट को फॉर्म होने में। और अगर हम किसी बच्चे में कोई नया बिहेवियर इनकलकेट करना चाह रहे हैं किसी भी तरह के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स के साथ, स्टिल इट टेक्स लाइक अराउंड 2 मंथ्स, और एग्जैक्टली अगर इफ आई से इट टेक्स अराउंड 66 days टू बिल्ड द न्यू बिहेवियर, न्यू थिंग। तो ये हमारे ब्रेन की प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिक मीन्स कि आप प्लास्टिक को किसी भी शेप में मोल्ड कर दो, तो ब्रेन इज होल्ड कर दैट, सकते किसी भी एज में कहीं भी जाके आप उसको मोल्डिंग कर सकते हो। ब्रेन का एक अजीब सी खासियत है अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन में दी हुई है, इट इज टू लाइक रीवायरिंग ऑल द टाइम। जब भी आप इसको रिवायर करेंगे आपका ब्रेन रीवायर रीऑर्गनाइज होता रहेगा। हैं या सो है दिस ना इज आपका ऑल अबाउट। लास्ट सेंटेंस? ओके सो रीवायरिंग की आप बात कर रहे थे कि प्लास्टिक मींस कि इट कैन मोल्ड एंड इट रीवायर्स ऑल द टाइम, रीफॉर्म्स, एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये आई थिंक एक चीज जो मैं पढ़ रही थी तो बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी उन बच्चों में नहीं होती जिनके अंदर स्पेशल नीड्स के हैं। आई थिंक ये चीज एक मिसकंसेप्शन है, ये उन बच्चों के में भी होती है, राइट? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इसके पीछे कुछ डिफरेंट, जैसे मैंने इसके ऊपर बात करनी थी कि अर्ली इंटरवेंशन क्यों जरूरी है या अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर क्यों जरूरी है। इसकी भी एक रीजन है, इसकी रीजन है उसके बाद अगर हम फर्दर उसके ऊपर काम करते हैं चीजें हो जाती, नो डाउट चीजें जरूर वर्कआउट कर जाती हैं। और अगर हम जितना उसके, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी कुछ प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर, जैसे मैं कहूँ कि इंटेंसिटी, आपकी रेपिटेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट। इंटेंसिटी और ओके रेपिटेशन के साथ अगर आप चीजें करते हैं तो आप फिर बढ़ती उम्र के साथ भी काम कर सकते हैं, यू कैन वर्क ऑन दैट। हम्म, सही बात है, क्योंकि हम एक काम जितनी बार बार करेंगे वो हमारे लिए उतना आसान भी होता चला जाएगा, क्योंकि फिर वो हमारे न्यूरल पाथवेज इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था है ना, आई थिंक यू हैव कनेक्टेड विद इट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो न्यू न्यूरल पाथवेज हैं वो कैसे बनते हैं और इनकी जो सिग्निफिकेंटली इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों हमें पता होना चाहिए in order to actually build up the neural pathways. यस, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ चीजें तो मैंने आपके पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि न्यूरल पाथवेज किस तरह से बनते हैं और किस तरह से जो है फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से अगर हम किसी भी एज के ऊपर बात करें कि ये जरूरी क्यों है, पेरेंट्स को जानना क्यों जरूरी है, या अगर केयर गिवर है या अगर कोई थेरेपिस्ट है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो। क्योंकि जब आप एक बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एनवायरमेंट प्रोवाइड किया है और वो एनवायरमेंट बहुत लिमिटेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है एएसडी का बच्चा है तो बच्चे को हम कहते हैं कि इसको तो चलो ये चीजें नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है इसके लिए, इसको यही Hmm. एनवायरमेंट प्रोवाइड किया। तो हम क्या करते हैं एज अ पेरेंट या एज अ केयर गिवर या एज अ थेरेपिस्ट, हम बहुत लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि हमें नहीं Yeah. पता कि हमारा ब्रेन, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि इसकी लिमिट आ गई, इसका पोटेंशियल नहीं है आगे बढ़ने का, इसकी तो लिमिट है ये। हम इसके उसके बाद वाली चीज हम करते नहीं, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द ब्रेन, ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या चीज है। जितना हम उसको एनरिच एनवायरमेंट देते रहेंगे बच्चे को उसकी कंफर्ट जोन से बाहर निकालना और उसको मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करवाना। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गोल बहुत स्पेसिफिक है और आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप उसको एक न्यू एनवायरमेंट प्रोवाइड करो। अब न्यू एनवायरमेंट से क्या होगा, अगेन
आपके जो एक ही सीध में या एक ही पाथवे में आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, वहीं पे न्यूरॉन्स आपके बिल्ड हो रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, वर्किंग, राइट। जो दूसरा पाथवे है जहाँ पे बच्चे की एबिलिटी बिल्डअप हो सकती है, वो चीज तो हमने कवर अप की है, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे की तो पोटेंशियल ही नहीं है। अब हम जब उसमें उसको पोटेंशियल नहीं होगा, वो कर नहीं पाएगा, यहाँ हम उनको रोक देते हैं। we stop them over there and हम उस तरफ सोचते नहीं है। अगर हम उस कंफर्ट जोन से बच्चे को भी पुल आउट करके बाहर निकालें और उसकी इंटेंसिटी, उसकी रेपिटेशन हम बढ़ाएं और हमको एक नया एक एनरिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि इस बेसिक गोल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक किसी बिहेवियर को ले लें जो कि लगता है, एक बच्चा है जो कि अपना जो हैंड है वो मुसलसल अपने फेस के आगे पीछे कर रहा है, उसकी ये आदत है, दैट्स अडैप्टेटिव बिहेवियर। आपको लगता है इसकी तो आदत है बच्चे की, अब क्या करें, क्योंकि एएसडी का बच्चा हम उसको ज्यादा वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बच्चे इस तरह करते हैं, सिम्टम्स आते हैं, हम उनकी मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होने के बाद हमें अंदाजा होता है कि जी अब तो वक्त हाथ से गुजर गया, कुछ नहीं हो सकता। जबकि अगर हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए हम मुसलसल एक नया एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करें, उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, उसके साथ हम काम करते रहें, तो एक नया कनेक्शन बिल्डअप होगा बच्चे के ब्रेन में और उसकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो असल फिनोमेना है वो वहां वर्कआउट करेगा। उसके बाद जब वो नया कनेक्शन बनेगा तो बच्चे के अंदर नई बिहेवियर, एक नया एकदम एक्टिविटी के साथ साथ एक नई हैबिट फॉर्म करा सकते हैं। दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग। लाइक एएसडी बच्चे ले लें, आप हमें ले लें, आप आम बच्चों को ले लें, न्यूरोप्लास्टिसिटी हर जगह वर्क करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आई थिंक कि ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो है ना, ये मैं इतने अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी। लाइक माय सन बिल्कुल बीइंग ऑटिस्टिक, मैंने उसके ये देखे हैं बिहेवियरल पैटर्न्स, एंड आई थिंक आई एम द लकी वन इन व्हिच माय सन वो अपने आप को खुद बहुत पुश करता है टू कंफर्ट जोन, क्योंकि वो समझ लेता है कि हाउ कैन आई do something new, and automatically उसका पिछला behavior will start fading away because now he is doing something new which is more socially acceptable and is more healthy. तो उसको खुद अच्छा लगता है, तो उसकी जो न्यूरल पाथवेज बनते हैं by doing certain behaviors. I think this Yes. is a very important point. Yeah. मेरा अपना बेटा भी जो है, जैसे ही हैज अ हियरिंग लॉस, तो उसकी जब कोक्लियर इम्प्लांटेशन हुई थी तो उसके सेंसेस बहुत ज्यादा, मतलब जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा बिल्टअप हो गए, लाइक विजुअल कॉर्टेक्स उसका बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव है, क्योंकि वो विजुअल क्यूज बहुत जल्दी पकड़ता है, क्योंकि उसे 4 साल के बाद कोक्लियर इम्प्लांटेशन हुई है उसकी। तो इट लाइक जो उसके उसके ब्रेन ने एक नया न्यूरल पाथवे कनेक्ट किया, उसके सेंसेस को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे भी मुझे अपने लिए भी ये बड़ा वो लगता है कि यार ये टर्म जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। हमने शायद इसको ओवरलुक कर दिया है और बहुत से लोग इसके ऊपर नहीं वर्क करे, लेकिन मेरे ख्याल से इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च बिल्कुल और होनी, जो कि नहीं होनी। इवन पाकिस्तान में मैंने अब तक न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर इतना खास कोई काम होते हुए देखा नहीं। दिस इज व्हाट बिल्कुल। आई और है ना, मैंने जब मैंने आपके होप रिवाइवल में देखा था, जब आपने मेंशन किया था कि यू आर स्टडीइंग दिस, तो मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि इतनी बेसिस को एक्सप्लेन कर देता है, इजी कर देता है फॉर द पेरेंट्स, उसके बारे में हमारे मुल्क में इतना काम नहीं हुआ। काम नहीं हो रहा। इस क्वेश्चन में यू यूज्ड वर्ड साइनेप्टोजेनेसिस, इसका क्या मतलब है? Synaptogenesis, as I told you, synapses मतलब connection, that connection building between the two neurons, जो हमारे दो सेल के बीच में कनेक्शन बन रहा है, synaptic cleft बन रहा है, उसमें से जो बिल्डिंग कनेक्शन, उसको हम synaptogenesis कहते हैं। I hope it's easy that I can tell you. Okay. Hina, there's this question कि सॉरी अजान हो रही है, मैं अपना म्यूट कर देती हूँ, इफ यू कैन आंसर दिस मीन। Yeah, sure. It takes 2 months of yes. आपने करीमी का आई थिंक एक क्वेश्चन है। Yes, she's asking about the repetitive behaviors to strengthen the behavior, and then she's asking the same thing, जो कि हम अक्सर शायद एबीए में भी करते हैं, कि हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारी इंटेंसिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह न्यूरोप्लास्टिसिटी में इट वर्क्स द सेम वे। और हम कोई भी न्यू स्किल सीखने के लिए हम सेम इसी तरह इसी पैटर्न पे काम करते हैं, क्योंकि इट टेक्स अराउंड लाइक 66 days टू बिल्ड अ न्यू हैबिट, अ न्यू स्किल और अ न्यू बिहेवियर। ओके है ना, जो क्वेश्चन जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा क्यूरियस थी जानने के लिए, कि एक तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है अर्ली इंटरवेंशन का, कि 3 साल से 6 साल तक की उम्र के बच्चों की अर्ली इंटरवेंशन होती है, विच इज द पीक टाइम जिसमें सबसे ज्यादा काम होता है। तो अर्ली इंटरवेंशन को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं बाय
न्यूरोप्लास्टिसिटी? ओके, इसमें ना कुछ स्मॉल पॉइंट्स हैं जो कि शायद बेसिक पॉइंट्स हैं, जो हम में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं। उसके बाद वाला जो पॉइंट है जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगी प्रिंसिपल्स को लेके, वो इसको उससे ज्यादा कनेक्शन मतलब अच्छे से आपको समझ आएगा व्हेन आई कनेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द न्यूरोप्लास्टिसिटी इन द सेम क्वेश्चन। अभी बेसिक थिंग्स आर कि आप एज अ पेरेंट या एज अ केयर गिवर आपको शुरू के टाइम में लाइक डायग्नोस्टिक होना, क्योंकि इसमें अगर इंसान स्पेसिफिक एनवायरनमेंट पे अगर डायग्नोस्टिक हो जाता है या उसको ये होता है कि अब मेरे बच्चे का रेड फ्लैग्स शो हो रहे हैं, ये शो हो रहा है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर बच्चे के अगर शुरू में आपको फील हो रहे हैं, तो फौरन से बच्चों को स्क्रीनिंग के लिए लेके जाए। स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। इसमें जो नंबर 1 पॉइंट है, जो कि बहुत ही बेसिक सी बात है, जो कि हम शायद तकरीबन सारे पेरेंट्स को बताते हैं या थेरेपिस्ट बताते हैं। सेकंड इज दिस कि हम जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो इंटरफेरेंस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म के, उसको हम मिनिमाइज कर दें इसमें। और क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब अर्ली इंटरवेंशन में भी हम आते हैं तो अक्सर ऐसी चीजें होती है कि हमारा जो गोल होता है ना वो स्पेसिफिक नहीं होता। लाइक अगर हम एक चीज के साथ हम 10 चीजें और भी करवा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल द किड इज लर्निंग टू वॉक, तो हम उनको ये भी कहते हैं यार डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स भी हैं, वो भी हम साथ करा दें, सारी डिफरेंट इसकी जो थेरेपी डिफरेंट और गोल्स है उसको भी हम साथ में अचीव कर लें। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी डजंट वर्क लाइक दैट। आपको उसके लिए गोल स्पेसिफिक होना जरूरी है कि अगर आप एक चीज करवा रहे हैं तो दैट हैज टू बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। मुझे एक चीज करवानी है और इसी चीज का एक फ्लो होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है इसके तक। न्यूरोप्लास्टिसिटी इसके अंदर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी जो कि अक्सर पेरेंट्स शायद है ना, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। इफ यू कैन स्पीक अ लिटिल लाउडर या इफ यू कैन पुट योर स्पीकर अ लिटिल क्लोजर। जस्ट अ सेकंड, आई कैन नॉट हियर यू। थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी वो हो रही थी ग्लिची। आई थिंक इट्स द इंटरनेट और I don't आई know, for थिंक some reason I cannot hear you. The sound is coming very low. क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही थी कंपेयर टू पहले। और गाइस यहाँ मेरी तरफ तो हो गई है तेज बारिश शुरू। आप लोगों की तरफ हो रही है कि नहीं? आई डोंट नो, ऑलवेज ये एक बारिश जो है ना, एक बच्चा अंदर का बाहर ले आती है। ओके, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। एनीवेज, yeah, it's raining and net is gonna be glitchy. But this sound is so therapeutic. I don't know how many of you could relate to it, but whenever I hear this sound and that smell of wet sand is very therapeutic for me. So yeah, Hina is back. Oh, Hello? I'm so sorry. I'm so sorry for this disruption. I don't No, know no, what no, it no, is. Hina. Now you are much audible. Okay. Thank God. Now I can hear you clearly. Okay. So Hina, you were talking about the. I think आप अच्छा खासा explain कर चुके थे, but the end part was when you were talking about early intervention and neuroplasticity. Yes. अच्छा, इसमें लास्ट पार्ट जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, लाइक बहुत सारे पेरेंट्स जब अपने बच्चे को थेरेपिस्ट के पास या किसी भी स्कूलिंग में या किसी भी ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ बच्चे की थेरेपी हो रही होती है, तो बहुत ज्यादा Yeah. पेरेंट्स क्या करते हैं, दे रिलाई ऑन टू देम, और फिर वो जो घर में इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसकी रीजन क्या है? ड्यू टू द लैक ऑफ द पेरेंटल सपोर्ट। हम पेरेंट्स Yeah. को भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो जिस तरह की चीजों से हम गुजर रहे होते हैं ऐसे केसेस में हमें जरूरत होती है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, हर तरह की जो काउंसलिंग सेशन है, वो पेरेंटल सपोर्ट भी यहाँ पे मुझे लैकिंग नजर आता है। पाकिस्तान में मुझे बहुत बिल्कुल ज्यादा लैकिंग नजर आता है कि है नहीं ये सिस्टम ही नहीं। तो जब बिल्कुल ये नहीं। सारे फैक्टर कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज लाइक इंटरकनेक्टेड, कि किस तरह से चीजें कनेक्शन में आनी चाहिए, हमारे पास नहीं है। मेरे पास एक एएसडी का केस जब आया तो उसमें मदर बच्चे से ज्यादा डिप्रेस थी और उनको चीजें नहीं पता थी, और शी इज लाइक आई डोंट नो, मेरे पास अब कोई आगे गोल नहीं है, मेरे पास आगे कोई व्यू नहीं है, एवरीथिंग इज ब्लैंक फॉर मी, लाइक देयर इज नो होप, आई एम जस्ट लॉक्ड इन अ ब्लैक बॉक्स, आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो जो चीज वो प्रोवाइड कर सकती थी अपने बेटे को, वो नहीं कर पाई क्योंकि वो खुद बहुत डिप्रेस थी, एंशियस अलग, डिप्रेस्ड अलग, और जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट भी नहीं था उनके पास। तो हमारी सोसाइटी में ये चीजें का, इन चीजों का मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट लेकर आना, इस चीज का इंट्रोडक्शन लेकर आना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस बिल्कुल इज व्हाट आई इम्पोर्टेंट है कि जैसे अब आप एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो है ना, जो कि एक नेचुरल अकरिंग है। इसमें आपने सिर्फ बच्चे को एक्सपोज करना है, उसकी पोटेंशियल को बूस्ट करना है और वो खुद ब खुद करेगी। आई थिंक ऐसी चीज के लिए तो एटलीस्ट हमें थोड़ा ज्यादा
ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, मेरी होप इतनी बढ़ गई, क्योंकि दिस इज हाउ माय सन इज नाउ लर्निंग फास्टर, दिस इज व्हाई एक्सपोजिंग हिम मोर, getting him out of his comfort zone is actually good for him. Yes, no doubt, no doubt. Yeah. अच्छा, तो environment का environment provide किस तरह करना है, just to take Yeah. that person out of the comfort zone and to learn to new things and new experiences. Yes, sorry, you were saying something. या वो सॉरी, वो मैं जो पॉइंट भूल, एक्चुअली यहाँ पे बारिश शुरू हो गई, इन बारिश की आवाज जो है ना वो एकदम से ऐसी एक्साइटमेंट ले आती है कि मैं पॉइंट ही भूल गई कि मैं क्या बोलने वाली थी. बट आई वांटेड टू आस्क अबाउट के स्ट्रैटेजीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजीज, कि स्ट्रैटेजीज और इंटरवेंशन क्या हो सकती हैं टू सपोर्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी. मैं ऐसा क्या करूं विद माय, एंड आई फर्स्ट वुड लाइक यू टू टॉक इन जनरल, एंड देन हम थोड़ा ऑटिज्म को लेके स्पेसिफिकली बात करेंगे. मैं यहाँ दो चीजों कनेक्ट करने वाली हूँ. सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स, एंड देन इसमें अच्छा स्ट्रैटेजीज अगर हम बात करें तो इसमें स्पेसिफिकली नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हम यहाँ पे डेफिनेटली स्मॉल सेशन में नहीं बता सकते. मैं इसको जनरल लेके जाऊंगी तो आई होप कि लोगों को समझ भी आएगा और ये अवेयरनेस भी क्रिएट करेगा. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका प्रिंसिपल नंबर 1 जो हम न्यूरोप्लास्टिसिटी में काम करता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी. किस हद तक आप स्पेसिफिक हो अपने स्ट्रैटेजी को लेके, अपने गोल को लेके. ये नंबर 1 पॉइंट है जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप कोई भी एक बिहेवियर फॉर एग्जांपल इनकलकेट करने वाले हो, या न्यू स्किल या न्यू बिहेवियर बच्चों को सिखा रहे हो, या बच्चों को नया एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस एनवायरनमेंट में डू नो अबाउट द गोल, कि आपका गोल क्या, आप उसको सिखा कह रहे हो, आपका जो कमिंग रिजल्ट है वो क्या होने वाला है. अगर आप स्पेसिफिक नहीं हो इसमें, इफ यू आर नॉट श्योर, इफ यू आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट द गोल दैट यू आर ट्राइंग टू एक्वायर, तो वो वर्क नहीं करेगा वैसे, क्योंकि फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको वहां पे फेल होती हुई नजर आएगी कि आई डोंट नो फॉर सम रीजन इट्स नॉट वर्किंग विद माय किड. क्योंकि आप एक वक्त में 4-6 चीजें अगर कर रहे हो, फोकस उसमें है कि बच्चा ये भी सीख ले, बच्चा ये भी सीख ले, बच्चा ये भी सीख ले, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसके तो न्यूरल पाथवेज आई थिंक बनने के बजाय और कंफ्यूज हो जाएंगे. कंफ्यूज भी हो सकते हैं उसमें. लेकिन अब वही बात है कि स्पेसिफिसिटी जितनी होगी आपकी, उतना ज्यादा अच्छे से काम करेगा, आपकी स्ट्रेटेजी वर्क करेंगी, आपका कोई भी दिया हुआ थेरेपी जो आपको आपका थेरेपिस्ट दे रहा है वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा. सेकंड इज जैसे मैं आपको पहले भी इसकी एग्जांपल दी थी कि अगर बच्चा वॉक करना सीख रहा है या बच्चा कोई नई टेक्निक सीख रहा है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इसको वॉकिंग स्टेप्स ही सिखाने हैं, लाइक 1 by 1. जैसे अगर हम आपने देखा होगा कि एज अ साइकोलॉजिस्ट एबीए के अंदर हम कहते हैं जैसे शेपिंग होगी, हर स्टेप के ऊपर बच्चे को मोटिवेशन मिल रही है और हर स्टेप पे बच्चे को रिवॉर्ड मिल रहा है. स्पेसिफिक अबाउट द गोल्स, अबाउट द स्टेप्स. तो ये चीजें इसमें बहुत मायने रखती हैं. And I think that makes the task for the child also easier, कि उसको पता होगा कि ऐसा नहीं होगा कि हमने उसको डायरेक्ट बोला कि तुम्हें लेवल 10 का गेम खेलना है, पहले हमने उसको लेवल 1 पे एक्सपोज किया, फिर 2 पे किया, फिर 3 पे किया. इन दिस उसकी न्यूरल पाथवेज भी बनते एंड देन उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जा रहा है. बिल्कुल सही. सर्टेन गोल होगा कि मुझे ये चीज अचीव करनी है और इसी पाथ मुझे इसी रूट पे काम करना है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. सेकंड पॉइंट इज रेपिटेशन. जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, जैसे बच्चे की सेशन हुए और हम घर आ गए एंड देन वी लीव इट. हमें का सेशन हो गया, आज 1 घंटे का सेशन हुआ या 2 आवर्स का सेशन हुआ, इट्स ओके, और घर में आके हम बिजी हो गए अपनी डेली रूटीन में. आई नो कि डेली रूटीन के साथ चीजें लेके चलना इट्स क्वाइट टफ विद मदर विद फादर. मतलब माँ बाप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कभी कभी नहीं कर पाते, लेकिन इस केसेस में आपको रेपिटेशन की बहुत जरूरत पड़ती है. मतलब कितनी दफा दिन में आप एक चीज को रिपीट कर रहे हो. ये एक सेकंड प्रिंसिपल है न्यूरोप्लास्टिसिटी का. कितनी दफा वो रिपीटेशन में आएगा, उतनी दफा वो चीज उतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होती जाएगी. आपने करवाया, आपने छोड़ दिया, आपने करवाया, आपने छोड़ दिया. ये जो इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी की बजाय कंसिस्टेंट पेरेंटिंग और रिपीटेशन, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है बच्चे के एनवायरनमेंट. एंड इसके लिए थोड़ा पेरेंट्स नीड टू बी more tolerant. I know it becomes sometimes overwhelming for the parents also, but consistency is the key. आपको ये करना है. Thank you for saying that, है ना. This is very important point जो कि parents नहीं कर पाते. बिल्कुल. अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करूंगी इसी के अंदर, पेरेंटिंग रोल में आज जरूर एक इसमें ऐड करूंगी पॉइंट, क्योंकि हमारे पास जो पेरेंटिंग स्टाइल्स आते हैं उसमें इनकंसिस्टेंसी पेरेंटिंग बहुत ज्यादा मुझे फील होती है कि इनकंसिस्टेंट पेरेंट्स रहते हैं. लाइक अगर फादर कुछ कह रहा है तो मदर कुछ और कहती है. तो बिल्कुल
इनकंसिस्टेंसी जो आ रही है पेरेंटिंग के अंदर, फिर वो क्या करती है, वो चीज कंफ्यूजन डेवलप करती है, रेपुटेशन डिस्टर्ब होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है। तो ऐसे केसेस में दोनों को एक ही गोल पे काम करना है, माँ को भी और बाप को भी और थेरेपिस्ट को भी। 3 लोग मिलकर अगर एक चीज पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली दे विल एक्वायर डिजायर्ड रिजल्ट। उसके अलावा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसमें बड़ी मायने रखती है, बहुत मीनिंगफुल है। किस इंटेंसिटी से काम हो रहा है। एक तो हो गया रेपिटेशन, अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं रेपिटेशन और इंटेंसिटी, दे लाइक ओके ये तो शायद सेम है, ये एक ही तरह की चीज होगी, जबकि इसमें डिफरेंस है। रेपिटेशन लाइक कि आपने दिन में बच्चे को ऑन एंड ऑफ 6 to 7 टाइम्स एक चीज करने को कहा है, एक गोल एक्वायर करने को कहा है। इंटेंसिटी इज लाइक कितनी देर तक वो ये कर रहा है, कितनी देर तक, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं पर वीक इफ द चाइल्ड, हम अक्सर बच्चों को कहते हैं 25 आवर्स पर वीक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ किड टू टेक अ सेशन, या फिर कोई भी गोल एक्वायर करने के लिए या फिर एक्टिविटी करने के लिए। तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है इसके अंदर, कितनी इंटेंसिटी से आप बच्चे को करवाते हो, कितनी देर बैठा रहे हो बच्चे को आप रूम के अंदर या फिर कहीं भी डेली रूटीन एक्टिविटी में, कितनी दफा उसको ये इंटेंस होकर बता रहे हो। राइट, इंटेंस फोकस थेरेपीज वो बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगी इस तरह के केसेस में। इसके अलावा टाइम, अच्छा है ना, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने एक एक्टिविटी सिखाई अपने बेटे को कि फॉर इंस्टेंस इन अ रूम मैंने उसको कहा कि कलर डिस्क्रिमिनेशन सिखाई मैंने, और वो उसने सीख ली कि नाउ ही नोज फॉर इंस्टेंस व्हाट इज रेड एंड व्हाट इज ब्लू। एंड नाउ जब उसका वो न्यूरल पाथवे बना होगा टू सो दैट ही कैन डिस्क्रिमिनेट द कलर, बट व्हेन वही बच्चा रियल लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन करने जाता है, फॉर इंस्टेंस इफ ही नीड्स टू know what is a red shirt and a blue shirt, or what he needs to know red car or blue car, वहां जाके वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी क्या लॉजिक है बिहाइंड न्यूरोप्लास्टिसिटी? जब एक चीज बच्चा लर्न करता है उसकी जनरलाइजेशन में क्यों फिर मसला होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द करते हैं हम ट्रांसपेरेंस यूज नहीं करते। न्यूरोप्लास्टिसिटी में न्यूरोप्लास्टिसिटी का अगला प्रिंसिपल ट्रांसपेरेंस है। लाइक डू नॉट गो फॉर द सेम एनवायरमेंट्स या सेम कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे हम कहते हैं चेंज होते रहना चाहिए। बिल्कुल, लाइक जैसे अगर हम थेरेपी के लिए जाते हैं, हमारे पास एक टेबल है, एक चेयर है, बच्चा वहां बैठता है, दैट चाइल्ड टेक्स थेरेपी देयर, उसके दिमाग में कॉन्टेक्स्ट बैठा हुआ है कि ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाइड जगह है, इट इज कॉन्टेक्चुअलाइज्ड ऑलरेडी कि मुझे यहाँ पे आके इस तरह से बिहेव करना है बिकॉज आई एम सिटिंग इन अ थेरेपी एनवायरनमेंट। ये चीज नहीं करनी है इसमें। न्यूरोप्लास्टिसिटी का नेक्स्ट प्रिंसिपल ये है, यू हैव टू ट्रांसफर, कीप ऑन ट्रांसफरिंग those concept into the daily routine, into daily environment। अब बच्चा अगर कलर डिस्क्रिमिनेशन किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सीख रहा है, तो आपने करना क्या है, आपने बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर ले जाके इस चीज को ट्रांसफर करना है, इस तरह से कि हर एनवायरनमेंट में आपको उसको डिस्क्रिमिनेशन सिखानी है, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर नॉट देयर, तो एटलीस्ट दैट चाइल्ड इज लाइक एबल टू ग्रास्प द थिंग विदाउट योर हेल्प। आपकी हेल्प के बिना वो ट्रांसफरेंस सीख के वो उसको जनरलाइज करना सीखे। तो जनरलाइजेशन न्यूरोप्लास्टिसिटी में इंपॉर्टेंट है। और इससे एक और कनेक्शन और बनता है, जब हम एक जगह एक चीज सीख रहे हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट हमारे दिमाग में डेवलप हो गया, उसके बाद हमारे पाथवे कनेक्ट चल रहा है, में लेके जाएंगे, वहां सिखाएंगे तो एक नया न्यूरल पाथवे बनेगा फिर। तो वो इसका मतलब है कि ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है कि वो जनरलाइज कर पा रहा है, अपनी वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर पा रहा है। और बहुत सारे यहाँ पे पेरेंट्स, एक और है ना, इफ यू कुड शेड सम लाइट ऑन दिस, जो कि मुझे लगता है कि हमारे मेंबर्स एज पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। वो समझते हैं कि बहुत सारी मदर्स मुझे कहती हैं मैं घर में उसको सब सिखा देती हूँ, टीचर के सामने जाके वो गलत आंसर देता है। तो यहाँ पे वो ये समझ नहीं पाती कि बच्चा सिर्फ रिलेट कर पाता है और सीख पाता है टू आंसर टू और रिस्पॉन्ड टू इज अ मदर। बाहर जाके वही आंसर, वही चीज जनरलाइज कैसे करनी है, पेरेंट्स ये चीज नहीं समझ पाते। एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि देखिए हर बच्चा डेफिनेटली एज यू नो वी नो हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग, हमारा ब्रेन अलग तरीके से वर्क करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने ये भी नोट किया है कि जो कॉन्टेक्ट स्पेसिफाइड नहीं होते वो जनरलाइज कर लेते हैं इजीली, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि कॉन्टेक्ट को जनरलाइज नहीं कर पाते, दे आर लाइक बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड हो जाते हैं, प्लस वो बहुत प्रिसाइजली एक एनवायरनमेंट में काम करके आ जाते हैं, उसके बाद दूसरे एनवायरनमेंट में उनको जनरलाइज करने में, उस चीज को समझने में उनको टाइम है, जब तक आप उस चीज का प्रैक्टिस ना कराओ। इसीलिए हर तरह का एनवायरनमेंट, जो कि न्यूरो कहता है कि हर तरह का एनवायरनमेंट आपको बच्चे को प्रोवाइड करना है। 3 लोगों का रोल इसमें इंपॉर्टेंट है, मदर, फादर एंड देन योर थेरेपिस्ट, जो कि इसके साथ काम करना है। फोर्थ इज द स्कूल। आई नो कि स्कूल पाकिस्तान में इतना ज्यादा इस चीज पर फोकस नहीं कर रहे होते, लेकिन स्टिल हमें, अगर बच्चा ASD के साथ है, बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ है, तो ये चारों लोग
इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एनवायरमेंट, अच्छा बिल्कुल एनवायरमेंट, एक एनरिच एनवायरमेंट देने। बिल्कुल। अब तो जैसे मैं आप यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी कि बिहेवियरल, जब मेरे बेटे की एबीए चल रही थी, तो एट अ पॉइंट हिज थेरेपिस्ट वाज ट्रेनिंग हिम टू रिस्पॉन्ड ऑन स्टॉप एंड गो, कि व्हेन आई से गो यू हैव टू मूव, एंड व्हेन आई से स्टॉप यू हैव टू स्टॉप वॉकिंग। तो उन्होंने पहले अपने कमरे में सिखाया, फिर उनकी थेरेपिस्ट ने मुझे कहा कि अब आप अपने घर में इस चीज को अप्लाई करके देखें। फिर मैंने पहले घर में किया, फिर मैं अपने गैरेज में गई, फिर मैं बाहर गई, और फिर मैं एक पब्लिक प्लेस में गई। मैं डायरेक्ट के मेरी थेरेपिस्ट ने कहा कि ओके नाउ ही हैज मास्टर्ड, के ही इज नॉट स्टॉपिंग एट माय कमांड। जरूरी नहीं है कि नाउ एट एवरी सिंगल पॉइंट। मैंने उसको स्लोली ग्रेजुअली जनरलाइज भी करवाया, उसको एक्सपोज भी कराया, एंड देन ही कुड रिलेट कि ओके स्टॉप का मतलब घर में भी स्टॉप ही है, और स्टॉप का मतलब पब्लिक प्लेस में भी स्टॉप ही है। So I have to stop and turn around. Yeah, this is how you need to do. I think this is where the neuroplasticity and the connections become stronger. बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी कि माशाल्लाह योर सन इज़ वेरी लकी, क्योंकि जिस तरह से आप चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो यहाँ पे, डेफिनेटली आप चीज़ें अपने घर में अप्लाई भी कर रहे हो, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। क्योंकि लोग सीखते तो हैं बट इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ बहुत कमी होती है। और इतना Yeah, अच्छे से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके आपने परफेक्ट एग्जांपल मुझे दी है ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंस जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर आपने परफेक्टली काम किया, एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी आपके सामने आया होगा कि किस तरह से बच्चा जनरलाइज करना सीख लेता है बिल्कुल हर एनवायरनमेंट। और ये एक चीज इसी को लेकर मैं एक चीज और भी कहूंगी, अगर उस बच्चे ने आपके थेरेपिस्ट से सीख कर आया है अगर वो कुछ, तो अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो घर का एनवायरनमेंट है, अगर आप उसको वो प्रोवाइड नहीं करती, तो वो फिर वहीं पे फिक्सेटेड हो जाता है कि मुझे बस थेरेपी बिल्कुल। सेशन ही। तो ये चीज मुझे तो सिर्फ पेरेंट्स अपनी टीचर को आंसर देना है, मुझे घर में थोड़ी बिहेव करना है। वैसे मैं बिल्कुल। तो जैसे चाहे घर में रह सकता हूँ। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और पॉइंट। मैं एक बात आपको बताऊं कि इट्स नॉट अबाउट अबाउट एएसडी किड्स, ये हर बच्चे के साथ है। ये आप हाँ कि हर मतलब आम बच्चे को ले लें, आप एक मेरे बेटे को ले लें, अगर जिस बच्चे को जैसे फॉर एग्जांपल हेयरिंग इशू भी है, किसी को लाइक आईज इशू है, किसी को तरह तरह के बच्चों को जो भी इश्यूज हैं, उनके अलावा जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाइड नहीं होते। दे नीड टू ये जनरलाइज, दे नीड टू लर्न दिस थिंग, लाइक किस तरह से बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से आएगी, जनरलाइजेशन किस तरह आएगी, ये तो मेरे ख्याल से हर बच्चे में ही होता है। हर तो यस बच्चे आई में थिंक, होता है, बिल्कुल। बिल्कुल। आई और थिंक ये एक चीज न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ना हर पेरेंट्स को आना चाहिए, समझना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बिल्कुल। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ इसको अगर हम, या है ना, कंटिन्यू। नो नो नो, यू गो। मैं शायद भूल जाऊंगी, तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, या। इट। मोटिवेशन जो है एक और प्रिंसिपल है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, जो कि अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि मोटिवेशन अगर नहीं होगी तो बच्चा अपने आप को पुश नहीं करेगा। दैट पुशिंग थिंग, क्योंकि आप बच्चे को जब कह रहे हो अपने मुंह से कुछ, इट मीन्स कि दैट पर्सन, दैट किड इज हियरिंग, और उसके जो केमिकल जो ब्रेन केमिकल्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं, वो रिस्पॉन्स आ रहा है। जब रिस्पॉन्स आ रहा है, इट मीन्स या कि आपका बच्चे का जो रिस्पॉन्स सेंटर है, जहां से रिवॉर्ड या सिस्टम हमारा अराइज होता है, वहां से अगर आप मोटिवेशन बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, तो दैट सेंटर विल गोइंग टू पुश दैट चाइल्ड टू गो टुवर्ड्स टू मेक अनदर न्यूरल पाथ, जिसकी वजह से अगेन वो जो पूरा प्रोसेस है, ये वापस से प्रोसेस बिल्डअप होगा। विच मीन्स कि मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, जो कि हम आई गेस एबीए में भी करते हैं कि रीइंफोर्समेंट देना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना वो जरूरी है। तो यही हिस्सा न्यूरोप्लास्टिसिटी का, ये प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो अक्सर लोग मिस आउट कर जाते हैं कि अच्छा ठीक है बच्चे तो काम कर रहे हैं, दैट इज ओके, हम लोग तो डेली रूटीन पे काम कर रहे हैं। हमें हर लेवल पे बच्चे को मोटिवेट करना है, मोटिवेशन तक पुश करना है, ताकि बच्चा अपने आप को पुश कर सके। बिल्कुल। यस और इसमें ना, जैसे कि है ना, यू मेंशन इट अर्लियर कि उसको ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉलर स्टेप्स। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड पार्ट इन विच द चाइल्ड विल कीप गेटिंग मोटिवेटेड, और उसको पता चलेगा ओके आई हैव नाउ डन अचीव समथिंग एंड नाउ आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे। तो है ना, यस नाउ specify the strategies and the importance of neuroplasticity and early intervention for ASD. तो इस बारे में what would you say? ओके, एएसडी को इस तरफ जाने के लिए हम किस तरह से इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस तरह इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे, जो पेरेंट्स जो एएसडी के बच्चों के साथ हैं, वो सबसे पहले काम ये करें कि जाके जो है वो अपने थेरेपिस्ट से जरूर बात करें। थेरेपिस्ट को जरूर ये बताएं, जिन जिनको अभी ये सेशन जिन्होंने सुना होगा, जिन जिनको ये नॉलेज है, ये अवेयरनेस आई है, वो जाके न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रिंसिपल्स के ऊपर जरूर बात करें कि हमने इन प्रिंसिपल्स के साथ काम करना है। दूसरा ये कि जो काम आप अपनी थेरेपी में सीख कर आ रहे हैं, उसको आपने इनकलकेट करना है होम एनवायरमेंट के अंदर, मतलब जो भी
करके इसको इनकॉर्पोरेट करना है। थर्ड इज कि आपने ये मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि लोग इसको जो है ओवरलुक ना करें, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थर्ड इज टू बी स्पेसिफिक ऑन द गोल्स, एंड द फोर्थ इज द चाइल्ड मोटिवेशन, जिस पे आपने फोकस करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एएससी के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि बच्चे का Hello? I think, Hina, if you can hear me, your net is stuck. आई थिंक ये बारिश के साथ ये तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग के नेट का और इसका इशू तो होगा लाजमी। आई थिंक कैसे तो मेरे के लिए अभी तक मेरी लाइट नहीं गई है, बट आई जस्ट मैसेज हर एंड आस्क। Till now, we have discussed about that how neuroplasticity and early intervention can actually be beneficial for children with autism. And now, I hope if Hina could join back, we would like to talk about practical suggestions for caregivers and health providers, how they can help while dealing with children with autism and in general toddlers, and how neuroplasticity can help understanding their certain behaviors and the repetitive behaviors, and how we can introduce new behaviors. Oh God, it's really raining heavily. I don't know कि कहाँ कराची में कहाँ बारिश हो रही है, but it's raining quite heavily here. Thank you guys that this session has been interesting, and I'm really sorry about this. Okay, Hina, I think उनकी लाइट चली गई होगी. I'm quite sure या internet, but we have covered so far. सारे topics discuss कर लिए थे about neuroplasticity. I'll just wait like a couple of minutes more, and otherwise I'll just ask her to comment below the last topic that I wanted to explore, that what kind of practical tips she would suggest for parents, caregivers, and trainers, that how they can help and facilitate children with special needs to improve their behaviors and reach their potential by help of neuroplasticity. It is such a fascinating concept, और इसको जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है मुझे बहुत मदद मिली है फ्रॉम लाइक अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक एज अ मदर मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट था टू अंडरस्टैंड माय चाइल्ड बिहेवियर, क्योंकि उसको इम्प्रूव करना है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, वो गलत है कि नहीं, इससे पहले मुझे समझना है कि वो ऐसे कर क्यों रहा है, फिर मैं ये जज करूंगी कि ये सही है या गलत है। क्योंकि अगर मैं समझे बगैर उसको उसकी ट्रीटमेंट करने लग जाऊं तो फायदा कुछ नहीं है। आई थिंक द चाइल्ड विल देन इन द एंड गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए, हमारा गोल ये होना चाहिए द चाइल्ड को हम समझ रहे हो कि फॉर इंस्टेंस अगर शुरू में मेरा बेटा बहुत ज्यादा माउथिंग करता था, लाइक ही यूज्ड टू टेक एवरीथिंग इन हिज माउथ। चलो बच्चे तो ऐसा करते हैं, लाइक उनकी एक ओरल नीड होती है जिसमें व्हेन अ चाइल्ड इज क्यूरियस he or she will put things in her mouth, but with age it starts to grow more and more.
और मैं उसको मना करती रहती थी, मैं डांटती रहती थी कि क्यों कर रहे हो, बट देन आई रियलाइज ओके दिस वाज अ सेंसरी नीड, इसकी प्रॉपर सेंसरी इंटीग्रेशन होनी चाहिए, एंड देन आई इंट्रोड्यूस सम रिप्लेसमेंट बिहेवियर, सम डिफरेंट थिंग्स, क्या मैं उसको वो चीज भी प्रोवाइड कर दूं, उसको सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए, और ना कि मैं उसको जज करूं कि हर चीज मुंह में क्यों लेता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको अगर हम समझ लें, हमारी लाइफ इजी हो जाएगी एज अ मदर, बिकॉज देन हमें समझ में आ जाएगा व्हाई माय चाइल्ड इज बिहेविंग इन सर्टेन वे, इंस्टेड ऑफ जस्ट जजिंग, क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि तुम्हारा बेटा बहुत जिद्दी है, या मुझे किसी ने कहा है तुम्हारा बेटा ऐसे क्यों बिहेव करता है। इंस्टेड यू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड्स बिहेवियर एंड देन फैसिलिटेट अकॉर्डिंगली। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कि अब हिना, आई डोंट थिंक सो कि शी will be able to, yeah, she just messaged ke her internet is down and even her mobile net isn't working. I'll just, I'll just ask her to detail में वो mention कर दें under the comments with the last topic, and I hope कि session आप लोगों के लिए helpful रहा होगा. If you want, I can again, yes, absolutely, we need to understand their sensory need. अब जैसे ये एक बात होती है, ये हम लोग realize नहीं करते, हम सबकी भी बहुत sensory needs है. लाइक अगर मैं नर्वस हूँ, आई स्टार्ट टू फ्लिकर माई पेन। अगर मैं क्लास में होती थी और मैं कोई चीज फोकस कर रही होती थी, मैं पेन को अपने क्लिक करने लग जाती थी। दैट वाज माय सेंसरी नीड। कुछ लोग अपने पैर बहुत हिलाते हैं। आई थिंक ये वो चीजें होती हैं जो हम भी कर रहे होते हैं, मगर हम इस चीज को इतना नोटिस नहीं करते जितना हम बच्चों में नोटिस करते हैं, और फिर हम बहुत जज करते हैं, और फिर हम बहुत नर्वस हो जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि उसका बेटा तो ऐसे नहीं करता, या उसका बेटा ऐसे नहीं करता, मेरा बेटा ऐसा क्यों करता है। प्लीज ये सब चीजों से बाहर आ जाएं। In the end, this is not what is important. Important is to understand your own child's need and then facilitate accordingly. She messaged she, okay, now there's, let's give it a last shot. She's trying to join again. Let's see, then we'll just talk about the last point and then I'll wind up the session. I'm so sorry. I have again lost. No problem. I know, बहुत तेज यहाँ हम पे बारिश दोनों हो में रही है से और बहुत किसी खतरनाक से एक्सपेक्ट बारिश ये आ रही है। होगा जरूर, क्योंकि बारिश हो रही है और इसकी वजह से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये होगा। अभी I have just tried to connect it with the mobile. I hope कि ये चल जाए, इसमें प्रॉब्लम ना हो आगे। तो है ना, बस एक काम कर लेते हैं कि जो हमारा लास्ट पॉइंट था उस पे इफ यू कुड इलैबोरेट एंड देन वी विल जस्ट वाइंड अप, बिकॉज़ आई नो आपका नेट भी ग्लिची हो रहा है, कि प्रैक्टिकल सजेशंस फॉर caregivers and health providers, like if they are dealing with ASD and toddlers. So what kind of इसके practical अंदर जो है suggestions you कनेक्ट करूंगी सबसे पहले पेरेंट्स के लिए, कि आपने ये सबसे पहले जानना है कि एएसडी में आपका जो बच्चे का ब्रेन है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। लाइक अगर फ्रंटल लोब है वो किस काम किस यूज में आ रहा है, और जब अगर हम न्यूरो इमेजिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि बच्चे की न्यूरो इमेजिंग हुई भी है और उसके बाद अगर आप इसमें चेंजेस देखें, तो जो फ्रंटल लोब है और जो लिम्बिक सिस्टम के दो पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये दोनों जो है थोड़े ऑल्टर्ड होते हैं इसके अंदर। इट मीन्स कि अगर आप इसमें कोई नई चीज स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप अगर इसके ऊपर अर्ली इंटरवेंशन के साथ कुछ थेरेपीज इनकलकेट करना चाह रहे हो, तो आई गेस कि ये जो दोनों आपके पार्ट्स हैं बच्चे के जो एएसडी में ऑल्टर्ड हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल एमिगडाला जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब वो एमिगडाला, जस्ट मैं थोड़ी बता दूं, एमिगडाला हमारे इमोशंस को, हमारे फाइट एंड फ्लाइट को भी कंट्रोल करता है। एएसडी में लाइक सच एज फियर, योर प्लेजर, हाउ मच यू आर एंशियस, क्योंकि एमिगडाला जो है दो किस्म के हार्मोन करता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिसोल एंड देन एड्रेनालिन, जो कि हमारे एंशियसनेस को कंट्रोल में रखता है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो जब कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है तो बीपी शूट करता है, तो हम एंशियस फील करते हैं। सेम इट वर्क्स लाइक एज इन चिल्ड्रन। जब
टेंशन फील करते हैं तो बच्चे फिर सोशल सेटिंग में जाने से घबराते हैं, क्योंकि बच्चे का एमिगडाला जो है वो इंक्रीज हुआ है और में एएसडी के अंदर ऑलरेडी ऑल्टर्ड होता है साइट के अंदर। और इसके साथ अगर हम हिप्पोकैम्पस की बात करें तो हिप्पोकैम्पस कंट्रीब्यूट्स इन मेमोरी, आप बच्चे का मेमोरी, साथ-साथ एक ऐसी एबिलिटी जो कि हमें कहते हैं कम्युनिकेशन के अंदर किस तरह से आपने सोशल सेटिंग में रिस्पॉन्ड करना है, वहाँ पे तो थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो ये चीज़ अगर हम समझ लें अपने बच्चों में, तो हमें आसानी हो जाएगी कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने जल्दी स्पोर्ट्स के अंदर फिट इन किया है, ताकि पेरेंट्स को थोड़ी आसानी हो उसको भी समझने में दैट हाउ डज़ दैट वर्क। दूसरा, बिफोर द एज ऑफ 3, हम 3 साल से पहले या 4 साल से पहले, 3 से 4 साल पहले अगर हम एएसडी के बच्चों को अगर हम अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाती है और हमें पता चलता है कि बच्चा एएसडी के साथ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो स्टिमुलेशन हम देंगे, न्यू लर्निंग की स्टिमुलेशन जो आ रही है, वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर मतलब जो ब्रेन के स्ट्रक्चर उसको चेंज करने में बहुत आपको हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर बच्चे के चेंज करने में उसको आप प्लास्टिसिटी के थ्रू सॉरी जो हम चेंज कर सकते हैं। मतलब हमारे जो बच्चे का स्ट्रक्चर है, ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। विच मीन्स ये अगर आप सही तौर पे अगर आप थेरेपी को लेके चलें, तो बच्चे के स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल सजेशन है पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों के ब्रेन के जो पूरा फंक्शन है उसको समझें और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करें। दूसरा ये कि आपने जब स्क्रीनिंग करनी है तो माइलस्टोन को ध्यान में रखना है कि कौन बच्चा जो है किस एज में कौन सा माइलस्टोन कवर कर रहा है। लाइक 2 ईयर्स में क्या होना चाहिए, 1 ईयर में क्या होना चाहिए। 1 ईयर में अगर बच्चा वेविंग कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, तो दैट इज ओके। अगर ये चीजें नहीं है तो आपको फौरन ये अर्ली मार्कर्स हैं ये पकड़ने हैं और आपके बच्चे को फौरन स्क्रीनिंग के लिए लेके जाना है और इसके ऊपर जितना हद तक हो सके न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए आपने स्ट्रेटजीज अप्लाई करानी है। दूसरा ये मैं थेरेपिस्ट जो कि मुझे सुन रहे हैं या बात सुनेंगे, ये उनके लिए सजेशन है। अगर पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो आपने इसके अंदर एक चीज जरूर इंक्लूड करनी है। आई नो माशाल्लाह एवरीवन इज डूइंग ग्रेट जॉब, ग्रेट वर्क, लेकिन साथ-साथ अक्सर थेरेपिस्ट जो है वो पेरेंट्स को जो है एक तो रिफ्लेक्शन और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है वो कम ही बताते हैं, क्योंकि वो शायद खुद वर्क कर रहे होते हैं तो इतना ज्यादा उनका पेरेंट्स से उनका सपोर्ट या उनका फोकस नहीं होता है। जब भी पेरेंट्स अगर आते हैं सेशन में और ये उनका सेशन चल रहा है एसडी का, तो उनका ये काम है कि वो रिफ्लेक्ट बैक करें और उसकी प्रोग्रेस को जानने के लिए पूछते रहें कि किस तरह से काम चल रहा है। प्रिंसिपल्स एक तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के वो इसमें इंक्लूड करें, इनकॉर्पोरेट करें, साथ-साथ पेरेंट्स से उसकी प्रोग्रेस पूछते रहें ताकि वो जो एक कनेक्शन है वो मेंटेन रहे। थर्ड इज के आपने एम्बेड करना है इंटरवेंशन जो कि आपको थेरेपी से मिल रहा है आपके नेचुरल सेटिंग में, जो हम पहले बात कर चुके हैं। ये जरूरी चीज है कि आपने घर के अंदर आके उसको वापस से इनकॉर्पोरेट करना है। जो आपके साथ आपके डिफरेंट और रिलेटिव रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉज हैं आपके, फॉर मदर्स अगर उन्हें इन लॉज हैं उनके, उनको आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। जहां जहां जिस हद तक सेटिंग हो सकती है जो कि आपकी डेली रूटीन में, बेडरूम से लेके बच्चे के ड्राइंग रूम से लेके बच्चे के गैराज से लेके बच्चे के लॉन से लेके हर जगह उस चीज को आपने इनकॉर्पोरेट करना है। जितना वो इनकॉर्पोरेशन होगी उसकी नेचुरल सेटिंग में और जितना वो डीकॉन्टेक्चुअलाइज होगी चीज, उतना बच्चा जल्दी ग्रास्प करेगा। एएसडी के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटीग्रेटेड अप्रोच। डिफरेंट चीजों को लेके एक अप्रोच बनाना। फॉर एग्जाम्पल हम जब कहते हैं कि डाइवर्जन आ गई है, 3-4 चीजें हमने एक साथ कर दी, डाइवर्जन के बजाय इसमें हमें कन्वर्जेंस चाहिए कि हम डिफरेंट चीजों को लेके एक एस्पेक्ट बनाए, उसका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाए, वो हम बच्चे को प्रोवाइड करें। और अगर ये नहीं हुआ तो गोल आप मिस कर सकते हो और बहुत सी चीजें जिस रूटीन में चलनी चाहिए, जिस पेस में चलनी चाहिए, वो पेस आपको नहीं मिलेगा, फिर आप वो पेस से ड्रॉप डाउन हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को आपने एक वो सिखाना है एसडी के बच्चे को कि आपने कांटेक्ट करना है, लाइक आई कांटेक्ट करना है, आपने फेस टू फेस बात करनी है, बच्चे की थेरेपी चल रही है, ठीक है। थेरेपी के दौरान आपने ये भी रखना है दिमाग में कि ये गोल मैंने रखना है कि बच्चा इंटरेक्ट करते हुए फेस टू फेस देखे या आई इंटरेक्शन हो बच्चे का। इसको आपने ध्यान में रखते हुए ये चीज इनकलकेट इस तरह करानी है कि उस पर रिवॉर्ड सिस्टम भी आपने सेट करना है कि जैसी वो देख रहा है या जैसी वो इंटरेक्शन में आ रहा है, आपने बच्चे को फौरन से मोटिवेट करके उसके बैक पे पैट कर दें या फिर आप उसको टैप कर दें, लाइक उसके हाथ पे एक अच्छा से जेस्चर दे दें, तो वो दो चीजें फिर एक साथ आपका एक गोल में सेट हो जाएगी, विच मीन्स कि आपकी अप्रोच जो है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब डिफरेंट चीजों को लेके आपने एक उसमें एक कॉम्पैक्ट उसमें बना दिया है। तो ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत जरूरी है थेरेपी के दौरान भी, और घर में जब आप थेरेपी बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हो या प्रोवाइड कर रहे हो उस दौरान चीजें बहुत जरूरी है। आई होप
एंड है ना, ये इससे जो आपने टिप्स बहुत दी से है ना, लोगों को हेल्प मिले स्ट्रैटेजीज, ये जो इतनी ब्रिलियंट है, बिकॉज इन ये स्ट्रैटेजीज चूंकि मैं इनमें से कुछ अप्लाई करती रहती हूँ, तो आई नो हाउ ब्रिलियंट दीज स्ट्रैटेजीज आर। और ये अगर पेरेंट्स करना शुरू कर देना, दे वुड एक्चुअली सी द रिजल्ट्स। क्योंकि शुरू में मुझे तो नहीं पता था, कि इतनी टिप्स का मुझे नहीं अंदाजा था, तो मैं इतने जल्दी रिजल्ट्स नहीं देख पाती थी। मैं क्या करती थी कि मैं भी डेटा लेती थी घर में, मैं वही एक्टिविटी घर में करती थी और मैं डेटा लेती थी, और जो 80% 90% वो अपने बिहेवियरल थेरेपिस्ट के पास कर रहा है, मेरे पास वो 10% भी नहीं कर रहा, 20% भी नहीं कर रहा। तो मैं, क्योंकि मेरे बेटे ने तो ये दिखा दिया, ही it may be in a certain environment, but he has the potential. There's something wrong the way I am doing it. So what I do is कि then फिर मैं या उनसे सीखती थी, है ना, कि मैं इसको वो बना लूं मसला, कि आप गलत बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, नहीं सीखा होगा आपने, एम ही बोल दिया मुझे कि सीख गया, इस तरीके से। इंस्टेड मैंने उनसे बोला कि आप मुझे बताएं मैं कैसे करूं। मैंने वो स्लोली ग्रेजुअली किया। इवन देयर वो वहां 100% कर रहा था, स्लोली ग्रेजुअली वो घर में कर सका, स्लोली ग्रेजुअली वो बाहर कर सका। तो हमेशा ये बात याद रखें कि इवन इफ योर चाइल्ड इज गोइंग टू अ थेरेपिस्ट फॉर 5 times a day, he is just going there for 1 hour. Mostly he is there outside in the real world. या You are there to train them for the real world, not the बिल्कुल therapist. ना हमारा काम है। एंड आई थिंक, है ना, द वे यू हैव एग्जैक्टली एक्सप्लेन्ड, आई थिंक जो आपने सेशन दिया ना आज, दिस विल रियली हेल्प द पेरेंट्स टू फैसिलिटेट द चाइल्ड इनटू द रियल वर्ल्ड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसलिए हम उसको डीकॉन्स्टिलाइज वाला जो हमारे दिमाग में रहता है कि इसको कॉन्टेक्चुअल हम रखें कि बस इसी कॉन्टेक्स्ट में करना है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाइड जगह है, बच्चा जा रहा है, टेबल चेयर है और फिर थेरेपी का सेशन है, वो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन जो काम आप कर सकते हैं, एक माँ कर सकती है अपने बिल्कुल बेटे के साथ नेचुरल एनवायरनमेंट में, वो थेरेपिस्ट भी शायद ना कर पाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस बिल्कुल, माशाल्लाह आई यू आर अ एग्री। ब्रेव मदर, आई नो कि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जितना रिजल्ट आप दे सकते हैं अपने बच्चे को, एक्वायर कर सकते हैं रिजल्ट अपने बच्चे के साथ, उतना थेरेपिस्ट नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। मैं खुद भी थेरेपी के लिए जाती रही हूँ, स्पीच थेरेपी के लिए, स्पीच रिहैब के लिए, लेकिन जो चीज मैं घर में करा रही थी आके उसके बाद उसको जो नेशनल सेटिंग में हमने इसको कन्वर्ट किया है, उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा फील हुआ, मुझे खुद को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगा कि यार ये बहुत डिफरेंस फील हो रहा है। तो यहाँ बिल्कुल अगर अगर पेरेंट्स सब माशाल्लाह आपकी तरह हो जाए तो आई गेस बहुत जल्दी पेरेंट्स जो है ना इस सब चीजों से इस प्रॉब्लम से भी बाहर आ सकते हैं। आई नो इट्स अ लॉन्ग गोइंग जर्नी, हम इसको लॉन्ग एक प्रोसेस, यस। 2-3 घंटे की बात नहीं कह सकते। जो मदर्स ये कर रही हैं उनको मेरी तरफ से लिटरली सैल्यूट, आई सैल्यूट, क्योंकि ये एक वाकई एक बहुत बहादुरी का काम है कि इस सब चीजों को साथ में लेके मैनेज करके चलना, वो भी इस कंडीशन में। दिस इज समथिंग लाइक माइंड ब्लोइंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ दिल से, क्योंकि मैं खुद भी इस तरह की बहुत सी चीजें गुजरती हूँ, तो आई कैन टोटली रिलेट किस तरह से आप लोग चीजें फोकस कर रहे हो, काम कर रहे हो। आई थिंक, है ना, आपका नेट फिर अटक गया है। आई डोंट नो ये मेरा अटका है कि, है ना, कट गया है। या आई थिंक, है ना, कट गया। Guys, I think we were anyways winding up our session, so I would just say thank you so much, है ना। आई थिंक ये मुझे तो बहुत मजा आया आज के सेशन में, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत ज्यादा जानना चाहती थी न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस चीज पे बिलीव करती थी, कहीं ना कहीं मैं इस चीज को समझती थी, मगर कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि मैं एक बहुत, हाउ डू आई से, लोग बहुत अनॉय जाते हैं मेरी इस आदत से, like I follow logic. If there's something that has a logic behind it, if there's something that has a scientific reasoning behind it, that is more sensible to me. वो मेरे लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो मेरे लिए ज्यादा प्रूफ रिटन होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं साइंटिफिकली पता था कि देर इज समथिंग गोइंग ऑन, ये एक न्यूरो पाथवेज है, देयर इज दिस न्यूरल कनेक्शन। मुझे इस पे अपने बेटे को प्रमोट करना है, मुझे अपने बेटे को एक्सपोज करना है, उसके ब्रेन सेल्स कंट्रोल उसके हाथ में है। वो जितना एक्सपोज होगा, वो उतना ब्रेव होगा, वो इतना ओपन टू चेंज होगा, ना कि फिक्सेट हो जाए इन जस्ट वन थिंग। Routine is important. I'm not saying that routine is absolutely crucial, but then and there, exposing them to more and more, thoda sa level up, thoda sa level up, that is what gonna bring them their capabilities to their actual potentials. Please अपने बच्चों का potential यहाँ मत समझें, यहाँ समझें, expectations यहाँ रखें, potential वहाँ रखें, क्योंकि ये लोग बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, बहुत ब्रिलियंट। हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमने कैसे डील करना है, तो वो उनका मसला नहीं है।
हम लोगों को समझना है, हमने उनको समझना है। वो बेचारे बच्चे हैं, वो एक अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरत बने बनाए आए हैं। हम जो हैं एक दुनियावी तौर पे बन चुके हैं। तो आई थिंक हमारी गलती है कि हम समझ नहीं पा रहे। तो लेट्स जस्ट improve ourselves in understanding these children, so it's better for us and them and the relationship. हम उनके ऊपर जो प्रेशर डाल देते हैं ना, बोल नहीं रहा, सुन नहीं रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सीख नहीं रहा, आई थिंक ये वो वाले सारे मसले हमारे हैं, उन बच्चों के नहीं है। से कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, वो हमें प्रोग्रेस भी दे रहे होते हैं, वो हमें इम्प्रूवमेंट भी शो कर रहे होते हैं, हम देख नहीं रहे हैं, हम समझ नहीं रहे हैं, तो वो उनका कसूर नहीं है। तो आई थिंक लेट्स जस्ट स्टार्ट मोटिवेटिंग ourselves and motivating them so that their neural connections become stronger. That was what the main essence from the session was. That start understanding the importance of neuroplasticity and the like changing of the brain all the time. That is really gonna help your child to understand and adapt to the real world. So on that note, I hope everybody go outside and enjoy the rain, those who are watching in Karachi. And I'll see you guys soon. I'm sorry I'm not able to do sessions very much often like I used to do, but it's just that the routine is getting tougher. So I'll get back with the new topic, interesting topic with the new guest soon. Take care. Allah Hafiz.